gentlemen, get ready. Also, in next 1 minute will be live. शुभ प्रभात, जय हिंद। आप सभी का संविम एकेडमी द्वारा आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। इस वैश्विक आपदा के अवसर पर संविम एकेडमी द्वारा इस कथन को पूर्णतः सत्य किया गया है। संविम एकेडमी भारत के टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए इस आभासी कार्यक्रम रोशनी आशा की एक किरण का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन को प्रारंभ करने से पूर्व हम विघ्नहर्ता गणपति की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक गणपति की इस आराधना के साथ अब हम अपने इस प्रेरणाप्रद आभासी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब मैं कार्यक्रम के मंच संचालन के लिए धृति और उसके सहयोगियों को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। सुप्रभात, स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। साधन कम पर भाव विभल है, स्वागत को श्रीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें हम आप सभी का श्रीमान। आप सभी गणमान्य अतिथियों का, अभिभावकों का, छात्रों का संविम एकेडमी द्वारा आयोजित इस आभासी कार्यक्रम रोशनी आशा की एक किरण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एकेडमी देश और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूपेण निभा रहा है और एक सृजनात्मक आभासी कार्यक्रम का आयोजन करते हुए अत्यंत ही गर्व का अनुभव कर रहा है। यह कार्यक्रम कोरोना की वैक्सीन के लिए हमें आशा प्रदान करेगा तथा सभी को प्रेरित भी करेगा। अब मैं माननीय प्रधानाचार्य संविम एकेडमी नॉलेज पार्क से अनुरोध करती हूं कि वह इस आभासी कार्यक्रम को संबोधित करें। Thank you. Good morning, everybody. Welcome you all on this virtual platform. First of all, let me take the privilege to respectfully and cordially welcome all our guests on board. To start with, I would like to welcome our Honorable Secretary Sir, respected Director Ma'am, Operational Head Rohan Sir, and Saloni Ma'am. Thank you all for your presence. Before I take this further, let me thank you all for your unconditional support, care, and all the more your encouraging words that keep us motivated and go on in all our endeavors of life. Last but not the least, a very warm welcome to our Honorable Deputy Director Sir for your guidance and support. I heartily welcome KK Panda Sir, Principal Sunbeam Academy Samneka. I am extremely privileged to have each one of you here. Welcome to the judges of today's competition, Mrs. Kanchan Singh, Headmistress Sunbeam Academy Knowledge Park, Mrs. Geeta Jain,
PGT Hindi, and Rachna ma'am, PGT Hindi. I personally feel honored to introduce our today's chief guest, Mr. Gaurav Yadav, Quizmaster, International Award winner, founder and CEO, EduAce Service. It is a great pleasure to welcome such a noted personality as our guest of honor. We got to wait for some more time for our chief guest. I hope he will be joining us soon. Here at Sunbeam Academy, we are not just looking for academic qualification, but also for personal qualities like leadership and teamwork, determination and flexibility, confidence and self-belief, respect and consideration, etc. in our scholars. Our students always sportingly move forward to take part in social awareness campaign on various topics. This time they are promoting Indian vaccination program to enlighten us all on the very topic today. There is a final round of Hindi speech competition on Bharat का टीकाकरण अभियान सर्वव्यापी महामारी का अंत. Students from classes 6 to 8 participated, and now students who qualified the first round will perform today. I end by wishing all the best to the participants. Good luck. Thank you. Over to MOC. Over to MOC. यस, धन्यवाद सर। हौसला अपना बुलंद कर लो, साहस और हिम्मत को संग कर लो, निर्भय होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, संयम और धैर्य से सफलता प्राप्त कर लो। सनबीम एकेडमी ने इस वैश्विक आपदा के अवसर पर अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूपेण निभाने का प्रयास किया है। इस क्रम में सनबीम एकेडमी ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए रोशनी आशा की एक किरण प्रतियोगिता का आयोजन करने का निश्चय किया, जिससे देश के युवा इस अभियान में अपनी प्रस्तुति दे सके। इस प्रतियोगिता में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपने भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया। इस अवसर पर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस आभासी प्रतियोगिता रोशनी आशा की किरण में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की गई। प्रथम चरण में प्रतिभागियों को विषय से संबंधित 1 मिनट का अपना वीडियो प्रस्तुत करना था। प्रथम चरण में 1 मिनट का अपना वीडियो प्रस्तुत करना था, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देने का प्रयत्न किया। अंतिम चरण में चयनित प्रतिभागियों को 3 मिनट की लाइव प्रस्तुति देनी है, जिनको उनके आत्मविश्वास, विषय अनुरूप, सकारात्मकता, भाषा और उच्चारण एवं मौलिकता के अंतर्गत मूल्यांकित किया जाएगा। अब मैं मनीषा मैम से आग्रह करती हूं कि वे चयनित विद्यार्थियों की सूची को प्रदर्शित करें। सर्वप्रथम कक्षा 6 के चयनित विद्यार्थी हैं, जिन्होंने प्रथम चरण में अपने प्रदर्शन के द्वारा अंतिम चरण में अपने स्थान बनाया है और इस अवसर को प्राप्त किया है कि वह अपनी प्रस्तुति दे सके। ये विद्यार्थी कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने प्रथम चरण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा अंतिम चरण में अपने स्थान को प्राप्त किया है और यहाँ पर वह अपनी प्रस्तुति देंगे। इनकी प्रस्तुति को मूल्यांकित करने के लिए हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कंचन सिंह, सनबीम एकेडमी सामने घाट की प्रवक्ता श्रीमती गीता जैन, सनबीम एकेडमी सामने घाट से की प्रवक्ता सुश्री रचना साहू मैम। आप सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है।
अब हम अपने इस सृजनात्मक आभासी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं और मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करने के लिए मंच संचालन के लिए आयुषी को आमंत्रित करती हूँ। आयुषी, unmute yourself. Ayushi beta, please unmute yourself. Salim, can you please continue with the first list? कुछ तकनीकी असुविधा की वजह से आयुषी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही है। अब मैं अर्पिता से आग्रह करती हूँ कि वे प्रतिभागियों के नाम को प्रदर्शित करें। धन्यवाद मैम। अब अभिमन्यु अकेला नहीं जो चक्रव्यूह में घिर जाएगा, कितना भी हो बलशाली कोरोना, एक दिन वह हार जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 के विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं कक्षा 6 से प्रतिभागी क्रमांक संख्या 1 त्रिशा को आमंत्रित करना चाहती हूँ। Lisa, unmute करो बेटा। Yes, speak. और दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम त्रिशा वर्मा है। मैं संबीम एकेडमी शाखा दुर्गा कुंड के कक्षा 6A में पढ़ती हूँ। विषय भारत का टीकाकरण अभियान, विश्वव्यापी महामारी का अंत। इस समय में हम सभी देश में भयानक कोरोना वायरस से परेशान हैं। इससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना है और एक दूसरे से दूरी बनाना है। लेकिन इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा जारी टीकाकरण अभियान में भी शामिल होना होगा। हमें अपने बड़ों को इस टीकाकरण में शामिल होने के लिए कहना होगा, तभी हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। टीकाकरण को लेकर लोगों द्वारा फैलाए गए अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए हमें सरकार और चिकित्सकों पे भरोसा करना होगा। अपने देश को बचाने के लिए हमें टीकाकरण अभियान में शामिल होना होगा। हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी से टीकाकरण अभियान को प्रथम स्थान पर ले जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिशा, आपका प्रयास सराहनीय था। अब बारी
क्रमांक संख्या 2 आरुष विश्वकर्मा की अपनी प्रस्तुति करने की है। नमस्कार, मेरा नाम है आरुष विश्वकर्मा और मैं कक्षा 6 बी सनबीम एकेडमी दुर्गाकुंड का विद्यार्थी हूँ। कोरोना महामारी से हम सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, पर अब समय है इससे उभरने का, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का और देश को एक सुरक्षित भविष्य देने का। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई है। हमारे देश में 2 टीके हैं जिनका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हमारे पास विदेशों से भी कई वैक्सीन आ रही हैं, जैसे फाइजर, स्पुतनिक इत्यादि। हमें अपने दोस्तों पर गर्व है कि वो भी हमारे देश को मदद कर रहे हैं। हम बच्चे अभी टीकाकरण अभियान में हिस्सा तो नहीं ले सकते, पर अपने से बड़ों को जागरूक करके एक पहल कर सकते हैं। हमें कुछ बड़ा नहीं करना, हमें सिर्फ अपने घर वालों और आसपास के लोगों को टीके के लिए तैयार करना है। इस समय टीके से जुड़ी हुई कई सारी अफवाहें फैल रही हैं, जिनसे हमें अपने आसपास के लोगों को दूर रखकर सही जानकारी देनी है और हम सब बच्चों को मास्क पहनकर, दूरी बनाकर, सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक सब सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद आरुष। इतनी कम आयु में अपनी देश सेवा का भाव आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। अब मैं तीसरे प्रतिभागी वरेश यादव से अनुग्रह करती हूँ कि वह अपनी प्रस्तुति के लिए आगे आए। मैं वरेश यादव कक्षा 6 का छात्र सनबीम एकेडमी सामने घाट में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको भारत के टीकाकरण अभियान के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस महामारी से हम 2019 के अंतिम महीने नवंबर से लेकर आज 2021 तक संक्रमित रहे। इससे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लागू किया और हमें मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया। अब हमारे देश भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उपलब्ध हैं, जो कि अब लगना शुरू हो गई हैं। वैक्सीन हमारे शरीर में जाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और वायरस से बचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। सवाल यह है कि यदि वैक्सीन एक ही है तो 2 टीके क्यों लगवाए जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड टीका हमारे शरीर में एक बूस्टर का काम करता है। वैक्सीन से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यह एक सुरक्षित और प्रमाणित टीका है। यह हमारे वरिष्ठ और लाखों लोगों ने लगवा चुका है, तो हम भी वैक्सीन लगवाएं और देश को महामारी मुक्त बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद वरेश, बहुत अच्छी प्रस्तुति की आपने। आगे बढ़ते हुए अब मैं क्रमांक संख्या 4 आकांक्ष सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वह अपनी प्रस्तुति करें। Unmute yourself. बेटा अनम्यूट करिए। Beta, you can unmute. Press that button.
बेटा स्क्रीन पे एक माइक की आइकन होगा, देखो माइक बना होगा, उसको क्लिक करो। कक्षांश आप चेक करके रखिए बेटा। वेलकम टू यू। If you can go for the next participant. In the meanwhile, someone can please contact Akshans. अब बारी प्रतिभागी क्रमांक संख्या 5 अनुष्का पंजाबी की अपनी विचार अभिव्यक्ति की है। Can I start, sir? Yes, please. माननीय प्रधानाचार्य और सभी शिक्षागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुष्का पंजाबी है और मैं संबी मैकेनिक्स लंदन कक्षा 6 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी को भारत का टीकाकरण अभियान के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। कोरोना महामारी पर नियंत्रण लाने हेतु ताकि कई देशों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी और जिसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी और फिर 45 से ऊपर के लोगों को इसमें शामिल किया गया और इसके बाद 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण कराने के लिए इसमें शामिल किया गया। यह टीका आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है। यह टीका हमें कोविड-19 वायरस से बचाता है और यह टीका हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और यह बाहरी संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद भी करता है और बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित करता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं तो यह टीका जरूर लगवाएं, जिससे कि आप इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे और इस बीमारी से बच पाएंगे और इस बीमारी से खिलाफ लड़ भी पाएंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस शिक्षाप्रद प्रदर्शन के लिए धन्यवाद अनुष्का। आगे बढ़ते हुए अब बारी प्रतिभागी क्रमांक संख्या 6 हार्दिक शर्मा की अपनी विचार अभिव्यक्ति की है। सुप्रभात, मेरा नाम हार्दिक शर्मा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क है। मैं आपके सामने कोरोना वैक्सीन के प्रति देश में जागरूकता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अमेरिका के CDC सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वैक्सीन बहुत शक्तिशाली होती है। यह बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि उसे संक्रमित होने से रोकती है। इसीलिए सकारात्मक के साथ नकारात्मक विचारों को भी स्थान मिल रहा है। यह पूरे देश में लागू होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण है। यह लोगों को बीमारी से बचाने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ काम करके बीमारी को दूर करता है। इसीलिए मम्मी, पापा, दादा, दादी चलो लगवाने वैक्सीन। अपने भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसलिए बीमारी न बन जाए मजबूरी, टीकाकरण करवाना है जरूरी। धन्यवाद। धन्यवाद हार्दिक। अपने देश में जागरूकता फैलाने के लिए आप अपना जोश ऐसे ही बनाए रखिए। आगे बढ़ते हुए अब मैं प्रतिभागी संख्या 7 अथर्व सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचार अभिव्यक्त करें। सुप्रभात आदरणीय गुरुजन एवं मेरे सहपाठी मित्रों। मैं अथर्व सिंह कक्षा वर्ग शाखा सामने
से आपके समक्ष भारत का टीका और अभियानों का प्रारंभ किया, जिसमें पोलियो, चेचक, मिज़िल एवं रूबेल जैसे कार्यक्रम प्रमुख हैं। जैसा कि आप सभी लोग को विदित है कि वर्तमान समय में विश्व के बहुत से देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। भारत सरकार ने एस्ट्राजेनेका व भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड नाम के 2 टीकों की मंजूरी दी है। इन टीकों की 2 खुराक दी जा रही है, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को इस टीकाकरण अभियान का प्रारंभ किया। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे देश की जनता तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुदाय व स्वास्थ्य कर्मियों की सहभागिता की आवश्यकता है, तभी हम इस महामारी से लड़ने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अथर, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आगे बारी प्रतिभागी क्रमांक संख्या 8 आर्या मिश्रा की अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की है। नमस्कार, मेरा नाम आर्या मिश्रा है। मैं कक्षा 6ठी बी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनबीम एकेडमी सामने घाट है। आज मैं आप सबके सामने भारत का टीकाकरण स्वव्यापी महामारी का अंत हमारा देश भारत दुनिया के तमाम देशों से बहुत अद्भुत है। इस देश को प्रकृति माता सृष्टि के प्रारंभ से ही बहुत स्नेह प्रदान किया है। हमारे देश भारत को पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस देश ने दूसरे देशों को जीवन जीने का तरीका सिखाया है। अब हमें दूसरे देशों से सीखना पड़ा है, जैसे कि इजराइल तथा अमेरिका इत्यादि। कोरोना वायरस नामक महामारी हमारे पूरे विश्व में फैल चुकी है, जिसमें कि हमारा भारत भी है। यह महामारी अनेक लोगों की जान ले रही है। हमारे देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके वैक्सीन निकाली है। इस वैक्सीन का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि इस वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। जैसे कि हम पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को टीकाकरण के द्वारा मिटाए थे, वैसे ही हम कोरोना को भी मिटा सकते हैं। इसीलिए अफवाहों पे ध्यान ना दें। जब आपकी बारी आए तो जाके टीका अवश्य लगवाएं और देश को कोरोना से मुक्त करवाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कृष्णा, टीकाकरण पे आपके विश्वास ने हमें भी प्रेरित किया। अब आगे मैं प्रतिभागी क्रमांक संख्या 10 जानवी सिंह को उनकी विचार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। Next you can call Akshans. I think Akshans is ready because he has raised his hand. Okay. अक्षांश सिंह, कृपया अपनी विचार अभिव्यक्ति के लिए आगे आइए। यस मैम। सुप्रभात और जय हिंद। मेरा नाम अक्षांश सिंह, मैं सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क कक्षा 6A का छात्र। मैं आप सभी के समक्ष भारत की टीकाकरण अभियान के बारे में कुछ चंद शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे भारत में कोरोना नाम की महामारी ने आतंक मचा रखा है और देश भर में भारत टीकाकरण अभियान तेजी पर है और ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि ये टीका कितना अच्छा है। तो ऐसे में हमारे देश के साइंटिस्ट WHO और GOI द्वारा टेस्ट करने के बाद हमारे देश भारत में लाया गया है और
ये वैक्सीन हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करती है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जाकर इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं और ये वैक्सीन किसी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। और आज के तारीख तक हमारे देश भारत में 20 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेटेड है, तो आप भी जरूर वैक्सीन लगाइए। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद अक्षांश, आपकी प्रस्तुति अत्यंत प्रेरणाप्रद थी। आगे बढ़ते हुए अब मैं प्रतिभागी क्रमांक संख्या 10 जानवी सिंह को उनकी विचार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। बेटा अनम्यूट करिए। जानवी बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। My voice is coming now. Yes बेटा प्लीज। नमस्कार, मैं जानवी सिंह कक्षा 6 सनबीम एकेडमी सामने घाट की छात्रा हूँ। आज सबसे पहले अपने विद्यालय सनबीम एकेडमी सामने घाट पर अपनी बातों को सबसे कहने का मौका मिला है, तो मैं इस मौके का जरूर सदुपयोग करूंगी। आप सभी भली भांति जानते हैं, कोरोना एक विश्व जनित महामारी है। मनुष्य जाति के लिए यह मृत्यु का दूसरा नाम है। आज अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हम सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। समाज में वैक्सीन को लेकर कई सी नकारात्मक बातें चल रही हैं, पर आप इन बातों को ध्यान न देते हुए वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना का ये वैक्सीन संजीवनी की तरह है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अमृत तुल्य है। अतः आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, विनती, आग्रह है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और अपने मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों को भी इसके लिए बोलें, ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ नारा लगाएं, टीका लगाएं और मानव जाति को इससे बचाएं। और टीका लगवाने के बाद कभी ना भूलें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर हमेशा अपने हाथों में लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जानवी, देश में जागरूकता फैलाने के लिए आपका प्रयास सराहनीय था। आगे बढ़ते हुए अब मैं प्रतिभागी क्रमांक संख्या 11 शिवांग पांडे से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। अर्पिता बेटा 9 नंबर का हो गया, कृष्णा राय। यस सर। नो सर। या इट्स नॉट डन बेटा। So now it's Suvangi Pandey, number 11. After that will come for Krishna Rai, number 9. Suvangi, please. Sivang, right. Sivang unmute करिए। Right. सुप्रभात, मैं शिवांग पांडे सनबीम एकेडमी सामने घाट का छात्र हूँ। वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से बचने के लिए हमें 3 चीज अवश्य करें। पहला, मास्क पहनना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे प्रमुख टीकाकरण। हमारे देश में 2 टीके भारत सरकार द्वारा
उपस्थित किए गए हैं वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और हमें उम्मीद है कि टीकाकरण समाप्त होने के बाद हमें इस महामारी से निजात मिल जाएगी और हम अपना काम स्वच्छंद होकर कर पाएंगे। और आपसे एक निवेदन है हमें कि कोरोना को हल्के में ना लें और टीकाकरण जरूर कराएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शिवांग, बहुत अच्छी प्रस्तुति की आपने। आगे बढ़ते हुए अब मैं प्रतिभागी क्रमांक संख्या 9 कृष्णा राय से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। बहुत जय हिंद। मैं कृष्णा राय शिक्षक है वो संबी अकेडमी का छात्र। विषय कोरोना महामारी और टीकाकरण। कोरोना वायरस या कोविड-19 ऐसी बीमारी है जिसे WHO ने महामारी घोषित किया है। यह वायरस नवंबर 2019 में चीन के वुहान लैब से निकला था। यह वायरस इंसान से इंसान को होता है। वर्तमान समय में इसके लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में संक्रमण है। इस वायरस से बचने के लिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने से संक्रमण का प्रभाव काफी कम हो जाता है। और वर्तमान समय में भारत में दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। यह वैक्सीन अगले महीने में विदेशों से मिलने की संभावनाएं है। भारत में 135 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 तक 200 करोड़ वैक्सीन का खुराक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तब तक हमें मास्क पहनना है, भीड़ से बचना है, अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवानी है, जिससे यह महामारी खत्म हो सके। जय हिंद। अर्पिता अनम्यूट करिए। कृष्णा, आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय था। अब आगे बढ़ते हुए मैं प्रतिभागी क्रमांक संख्या 12 गरिमा यादव से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार आदरणीय मैम एवं सर। सबसे पहले मैं गरिमा यादव कक्षा 6B सनबीम एकेडमी दुर्गाकुंड की छात्रा इस अवसर को मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। भारत में कोरोना महामारी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है और लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। परिस्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। इसके पीछे कारण है भारत की बड़ी जनसंख्या और लोगों की लापरवाही, जो वायरस की वृद्धि में साथ दे रही है। लोगों को बार बार कहने पर भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। इन सब का रामबाण इलाज है वैक्सीन, और वैक्सीन की खोज एवं उत्पादन में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। भारत में इस समय अनेक वैक्सीन उपलब्ध हैं, किंतु हमारी भारतीय वैक्सीन सबसे सस्ती एवं सबसे प्रभावी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि एक कोविड वैक्सीन न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के सारे लोगों को संक्रमण से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित हो जाने पर भी मृत्यु का खतरा नहीं रहता है। टीकाकरण एक तरफ जहां झुंड इम्यूनिटी को बढ़ाता है, संक्रमण को कम करता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र को महामारी पर भी विजय दिलाता है। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणाप्रद प्रदर्शन के लिए धन्यवाद गरिमा। अब मैं 13वें और कक्षा 6 के आखिरी प्रतिभागी रुद्राक्ष से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। नमस्कार,
मैं रुद्राक्ष जी गुप्त संबिम अकेडमी सामने घाट की कक्षा 6B का छात्र हूँ। आज मैं आप सबको कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने हेतु जागरूक करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों में संक्रमण का ज्यादा खतरा, इसलिए वैक्सीन को 2 डोज में बांटा गया है। पहला डोज लगवाने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगवाने के बाद 2 से 3 दिन तक तेज बुखार रह सकता है। यदि कोई अधिक परेशानी आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को दूर भगाएं। धन्यवाद। इसी के साथ कक्षा 6 के सारे प्रतिभागियों के जोश और उल्लास के लिए मैं उन सब का हृदयागत आभार व्यक्त करती हूँ। संकल्प दृढ़ हो मन में, फिर कदम बढ़ा कर तो देखो, मंजिल भी मिल जाएगी और जिंदगी भी रोशन हो जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 7 के विद्यार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं प्रतिभागी क्रमांक संख्या 14 आस्था सिंह को उनके विचारों की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर। बेटा अनम्यूट करिए आस्था। यस, प्लीज स्पीक। सुप्रभात, मैं आस्था कक्षा 7 सनबीम अकेडमी नॉलेज पार्क की छात्रा आप सभी के समक्ष टीकाकरण विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करती हूँ कि कोरोना वायरस से बचने एवं लड़ने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। वैक्सीन लगाने से इम्यून सिस्टम संक्रमण को पहचानने के लिए बूस्ट करता है। उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं जो बाहरी बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इससे आप बीमारी से लड़ने एवं बचने में कामयाब होते हैं। इंसानों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे किफायती और प्रभावी तरीकों में से एक है टीकाकरण। देखो देखो कहीं ना हो जाओ लेट, वैक्सीन है कोरोना का हेलमेट। धन्यवाद। धन्यवाद आस्था, अत्यंत ही सराहनीय प्रयास किया आपने। अब मैं प्रतिभागी क्रमांक संख्या 15 मेघा को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने विचार व्यक्त कर सकें। बेटा अनम्यूट करिए। मेघा अनम्यूट योरसेल्फ। Megha, do you have any issue? Arpita, can you please go for number 16? And in the meanwhile, Megha can arrange herself. Yes, sir. अब बारी प्रतिभागी संख्या 16 आशुतोष की अपने विचारों को व्यक्त करने की है। सुप्रभात, मैं आशुतोष सिंह कक्षा 7 सराय नंदन शाखा का छात्र हूँ। मैं भारत का टीकाकरण अभियान सर्वव्यापी महामारी का अंत पर अभिभाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत में कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। अभी तक 11 से 12% लोगों ने ही टीके की पहली खुराक लगवाई है और 5 से 7% लोगों ने ही दोनों खुराकें लगवाई हैं, जिससे यह पता चलता है कि बहुत से लोग कुछ अफवाहों को लेकर भयभीत हो रहे हैं, परंतु हमें डरना नहीं है और जल्द से जल्द टीका लगवा लेना है।
हमारे भारत देश में 3 प्रकार के टीके उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी रशिया से मंगाई गई है। कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 84 से 112 दिन के अंदर ले लेनी है। कोवैक्सीन में यह अंतराल 28 से 42 दिन का है और स्पुतनिक वी में 21 से 90 दिन का है। हालांकि स्पुतनिक वी अभी लगाई नहीं जा रही है। कोरोना टीकाकरण का एकमात्र उद्देश्य हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है ताकि हम कोरोना को हरा सकें। टीकाकरण के साथ ही साथ हमें पहले की तरह सावधानी भी बरतना जरूरी है, जैसे मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना, सामाजिक दूरी का पालन करना और अधिक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलना। तभी हम इस वैश्विक महामारी कोरोना को हरा सकते हैं। अब मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सब थके हैं सब अकेले लेकिन फिर आएंगे मेले। सब थके हैं सब अकेले लेकिन फिर आएंगे मेले। साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। हमें साथ ही लड़ना पड़ेगा और साथ ही चलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष, आपके विचारों ने हमें बहुत प्रभावित किया। अब मैं प्रतिभागी संख्या 17 आगा गुप्ता से अनुग्रह करती हूँ कि वह अपने विचारों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य एवं सभी उपस्थित गण। मैं काव्या गुप्ता, कक्षा 7 वर्ग अ, संदीप अकादमी शाखा दुर्गा। जैसा हमें ज्ञात है कि संपूर्ण विश्व कोरोना नामक एक भयावह महामारी से ग्रसित है। हमारा देश भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। वर्तमान में हमारा देश इस महामारी से विगत 1.5 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। कोरोना संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि वर्तमान में इस महामारी का कोई भी उपचार नहीं है। मास्क पहनने, सफाई रखने एवं 2 गज की दूरी जैसे उपाय इस संक्रमण को फैलने से रोक सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य वैज्ञानिकों का यह मानना है कि टीकाकरण ही इस महामारी के रोकथाम का उपाय है। टीकाकरण अभियान से मनुष्य जाति में इस संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। इस कड़ी में भारत ने अन्य देशों की भांति 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन का निर्माण किया है। भारत में टीकाकरण का आरंभ 16 जनवरी 2021 से किया गया है। भारत का टीकाकरण अभियान एक सर्वव्यापी महामारी के अंत की ओर एक नई रोशनी प्रदान करता है। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद काव्या, आप अपना जोश ऐसे ही बनाए रखिए। आगे बढ़ते हुए अब प्रतिभागी संख्या 18 नंदिनी की बारी अपने विचारों को प्रस्तुत करने की है। सुप्रभात एवं जय हिंद। वैश्विक महामारी का अंत भारत टीकाकरण के संग, इस वाक्य के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम नंदिनी मिश्रा है। मैं कक्षा 7 अनुभाग ब तथा दुर्गा कुंड शाखा की छात्रा हूँ। आज का विषय है भारत टीकाकरण अभियान, सर्वव्यापी महामारी का अंत। इस विषय पर मैं अपनी विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोविड-19 नामक वायरस पहली बार चाइना के वुहान शहर में 31 दिसंबर 2020 को पाया गया था। WHO ने इस कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दिया। यह कोविड-19 एक आरएनए वायरस है। इस कारण यह अपना स्वरूप बदलने में सक्षम होता है, इसलिए इसका टीका बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। पर हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण अभी तक पूरी दुनिया में 6 से 7 टीकाएं उपलब्ध हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी 2021 को भारत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। अभी तक भारत में 3 टीकाओं को उपलब्ध किया गया है। पहला है कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। यह टीका एडिनोवायरस जो कि बेंजीन में पाया जाता है उससे बनता है। भारत में इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दूसरा है कोवैक्सीन, जो कि पूर्ण तौर से स्वदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक तथा ICMR ने मिलकर बनाया है।
यह वैक्सीन कोरोना को मृत करके बनाया जाता है, जो कि एक पारंपरिक तरह है। तीसरा है स्पुतनिक वी, जो कि गेमलिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। बहुत ही जल्द हमारे बाजारों में एक और पूर्ण तौर से स्वदेशी वैक्सीन भी आने वाली है, जिसका नाम है जाइकोव-डी, जो कि कैडिला कंपनी बना रही है। इसका परीक्षण अभी हो रहा है और ये बहुत ही जल्दी बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। नासिक टीका, बहुत ही जल्द हमारे भारत बायोटेक नासिक टीका का भी परीक्षण कर रही है। यह परीक्षण बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। ये नासिक टीका कहीं भी किसी भी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमारे DRDO तथा डॉक्टर लेबोरेटरी ने मिलकर एक दवाई बनाई है, जिसका नाम है 2DG, जो कि कोरोना संक्रमितों को दी जाती है। इसके कारण ऑक्सीजन लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ता है तथा ऑक्सीजन सहयोग भी ज्यादा दिन तक नहीं देना पड़ता। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, आप सब वैक्सीन से कृपया ना डरे, यह पूर्ण तौर से सुरक्षित है। लाखों लोगों ने इसे लगाया है और ये किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इस कारण मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि वैक्सीन लगवाएं, दूसरों को प्रेरित करें, अपना ये छोटा कदम आगे बढ़ाएं ताकि पूरी मानवता को हम बचा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी, आपके विचार अत्यंत प्रेरणाप्रद थे। अब मैं प्रतिभागी संख्या 19 आयुष्मान त्रिपाठी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। मेरा नाम त्रिपाठी है, मैं 7 साल का छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है भारत का टीकाकरण सर्वव्यापी महामारी का अंत। अपने आसपास होने सुरक्षा की ढाल, टीका लगवाकर रखें अपनों का ख्याल। कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की हुई है। इस महामारी से लड़ने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। यह महामारी हर भारतीय में दिखाई दे रहा है। भारत इस महामारी जिस प्रकार से मुकाबला किया है, इसका सिक्का आज पूरी सरकार और विभिन्न एक पर बेहतर काम की है। इसका भी उदाहरण आज के देश को आज पूरे विश्व आया है। इसमें स्तर का टीकाकरण करवाना, अब टीकाकरण अभियान पहले भी चलाया गया है। यह अभियान इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि भारत ने पहले ही चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवा चुका है तथा दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवाया जा रहा है। यह भारत का सामर्थ्य तथा हमारे वैज्ञानिकों की कार्यकुशलता को दर्शाता है। वर्तमान समय में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले चरण में बच्चों के लिए भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि कल ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर 2021 तक सभी देशवासियों को टीका लगाने की एक कार्य योजना तैयार की है। WHO ने उत्तर प्रदेश के कोरोना महामारी के दौरान के उपायों को देखते हुए योगी मॉडल की प्रशंसा की है। जिस प्रकार बनारस ने इस महामारी में अच्छा कार्य किया है, इसकी भी प्रशंसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस मॉडल के रूप में किया है। याद रखें, सफाई दवाई कड़ाई, लड़ेंगे हम कोरोना से लड़ाई। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ, सनबीम एकेडमी की यही अपील, कोरोना से बचाव में न दें। कृपया मास्क पहने, क्योंकि मास्क ही आपका एक हथियार है। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष्मान, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की आपने। अब मैं प्रतिभागी संख्या 20 हर्षिता से अनुरोध करती हूँ। यस सर। It's my privilege to welcome Mr. Gaurav Yadav. He is the guest for the day in the chapter of Roshni. You are most welcome to this session, sir. Thank you.
Arpita, please carry on. आइए सर। अब मैं प्रतिभागी संख्या 20 हर्षिता से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे बढ़कर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मैं हर्षिता मिश्रा कक्षा 7 वर्ग अ दुर्गाकुंड शाखा में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कोरोना वायरस को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए टीकाकरण ही हमारी एकमात्र उम्मीद की किरण है। हमारे देश की सरकार ने हमें अब तक 2 टीके उपलब्ध करवाए हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। टीकाकरण के साथ साथ हमें कोरोना वायरस से बचने के तरीकों को भी अपनाना चाहिए, जैसे कि अनावश्यक घर से बाहर न निकलना, मास्क पहनना, उचित दूरी बनाए रखना और समय समय पर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहना। इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को अपना टीकाकरण अवश्य ही करवाना चाहिए और हम सभी को कोरोना वायरस से बचने के तरीकों को अपनाना चाहिए, तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। कोरोना को भगाना है, वैक्सीन को अपनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हर्षिता। देश में जागरूकता अर्पिता, फैलाने के लिए आपका प्रयास सराहनीय था। Arpita, if number 15 Megha is present, ओके सर। please call. अब मैं प्रतिभागी नंबर 15 मेघा से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे आएं और अपने विचारों की प्रस्तुति करें। Yes, Megha, unmute yourself, beta. सुप्रभात, प्रणाम। मेरा नाम मेघा सिंह है। मैं कक्षा 7 वर्ग ब में दुर्गाकुंड शाखा की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष भारत का टीकाकरण अभियान सर्वव्यापी महामारी का अंत भाषण व्याख्यान प्रतियोगिता में अपना विचार व टिप्पणी प्रस्तुत करने जा रही। देश में इस समय वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। चीन से आए कोरोना नामक वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। 31 दिसंबर 2019 को इसकी पहचान हो गई। इस दौरान भारत में 27 जनवरी 2020 से पहला संक्रमण होना शुरू हुआ। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी सावधानी लेने तथा टीकाकरण कराने से आप और हम मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता एवं कंपनियों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संभावित टीके बना लिए हैं। टीका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करता है। टीके हमें बीमार होने से बचा सकते हैं या बीमारी को कम गंभीर बना सकते हैं। भारत में बने टीके सुरक्षित एवं प्रभावी हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए इनका भारत सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है। हमें टीकाकरण से संबंधित गलत जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए तथा चिकित्सक पेशेवरों की सलाह सुननी चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मार्च 2021 को कोविड टीकाकरण कराया है। भारत में 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष आयु के लोगों को टीकाकरण कराया जा रहा है। अभी तक लगभग 20 करोड़ भारतीय ने टीकाकरण कराया है। लोगों को टीकाकरण कराने के लिए जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। अतः भारत सरकार के टीकाकरण अभियान में साथ दे और देश को कोरोना मुक्त बनाए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज रात जरूर आएगा। आइए में हम मिलकर अपनी और अपने की सुरक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। आशा की एक इस प्रेरणाप्रद प्रदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद मेघा। आगे बढ़ते हुए मैं 21वें प्रतिभागी सक्षम मिश्रा को विचार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि एवं मेरे शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार। मैं सक्षम मिश्रा कक्षा 7 सनबीम एकेडमी सराय नंदन का छात्र हूँ
और आज मैं आप सभी के सामने भारत में टीकाकरण अभियान सर्वव्यापी महामारी के अंत के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। आओ आज के दिन सलाम करें उन आविष्कारकों का जिन्होंने हमारे लिए कोरोना के टीके का इजाद किया। जी हाँ, तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वुहान में जन्मी इस वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व को अस्त व्यस्त करके रख दिया था, परंतु भारत भी इस अदृश्य शत्रु से पिछले वर्ष से लेकर आज तक लड़ता आ रहा है और आखिरकार भारत ने भरपूर प्रयास करने के बाद इस महामारी के अंत करने की कोशिश में कामयाबी हासिल कर ही ली। सोहनलाल द्विवेदी जी ने तो सच ही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे भारत वैज्ञानिकों ने दिन रात के कठिन परिश्रम के बाद कोरोना के खिलाफ हथियार तैयार किया, टीका। किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप से दी जाती है उसे टीका कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। भारत ने भी टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान दुनिया में 16 जनवरी 2021 को शुरुआत की। यह अभियान भारत में ही बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों द्वारा चलाया गया। टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीके लगे। टीकाकरण के दूसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक लोगों को टीके लगे और तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक कुल 19 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं, जिनमें से 4 करोड़ लोगों को टीके के दोनों खुराकें भी मिल चुकी हैं। परंतु टीकाकरण का मतलब ये नहीं है कि हम मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और समय समय पर हाथ धोना भूल जाएं। हमें दवाई भी कड़ाई भी की बात याद रखनी होगी। अब तो बस हम यही उम्मीद करते हैं कि यह टीकाकरण अभियान पूर्णतः सफल हो जाए और हम अपने विद्यालय बिना किसी रुकावट के हंसते हंसते जा पाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब अपने भाषण को विराम देना चाहता हूँ। खुद न डरें, न दूसरों को डराएं। अपने समय आने पर टीका जरूर लगवाएं। बहुत इसने हमें डराया है, अब हमें उसे है डराना। मिलकर इस अभियान को सफल है कराना। धन्यवाद। जय हिंद। Arpita, unmute yourself. Arpita, unmute and speak better. अब मैं अगली और कक्षा 7 की अंतिम 22वीं प्रतिभागी सृष्टि को उनकी विचार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करती हूँ। शुभ प्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं सृष्टि पांडे संबीम एकेडमी सामने घाट में कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। अपार मुझे इस अभ्यासिक कार्य में अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। आज है भारत का टीकाकरण उत्सव। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक भयंकर महामारी है और यह निरंतर हमारे प्रियजनों को काल के गाल में खींच रही है। अब तक भारत में लाखों लोग इसके शिकार हो चुके हैं तथा लाखों लोग अस्पताल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हाथ पर हाथ रखकर मृत्यु का इंतजार कर, बल्कि हमारे वैज्ञानिक अपना अमूल्य समय इस बीमारी के इलाज को ढूंढने में लगा रहे हैं। साथ ही में बात यह भी है कि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद वैक्सीन की खोज कर ली गई है। विश्व के अन्य देश भी वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार के प्रयास से भारत का टीकाकरण उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। तो सोच रहे हैं, घर से निकलिए और टीका लगवाइए। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सृष्टि, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसी के साथ कक्षा 7 के सभी प्रतिभागियों के जोश और उल्लास के लिए मैं आप सभी का हृदयागत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं अपनी सहयोगी उपासना को आमंत्रित करती हूँ कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अर्पिता। हुआ है एक निवेदन सर्वहित में, सबको पालन करना चाहिए। लड़े हम कोरोना से डटकर, सबको टीकाकरण कराना चाहिए।
इसी विश्वास के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 के विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हैं कि वह इस पर अपने विचारों को व्यक्त करें। अब मैं क्रमांक संख्या 30 लक्ष्मी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय निर्देशिका महोदया, माननीय सचिव महोदय, माननीय उप निर्देशक महोदय, माननीय प्रधानाचार्य एवं गुणवान व्यक्तियों को मेरा नमस्कार एवं सुप्रभात। मैं लक्ष्मी पांडे कक्षा 8 वर्ष सनबीम एकेडमी सामने घाट की छात्रा हूँ। हाथ साफ, मुंह पर मास्क, होगा कोरोना का सर्वनाश। इस नारे के साथ मैं आज भारत के टीकाकरण अभियान के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। हमारा देश कोविड-19 वायरस के दूसरी लहर से लड़ रहा है। इस कठिन घड़ी में कोविड-19 की वैक्सीन लोगों के लिए वरदान साबित हुई। 2020 में जब यह वायरस पहली बार लोगों के सामने आया तो हमारे पास इस वायरस का टीका उपलब्ध नहीं था, लेकिन हमारे सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिए गए निर्देश एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर हमारे देश ने इस वैश्विक महामारी का सामना किया और कोविड के आंकड़ों को कम किया। लेकिन 2021 में जब इस वायरस की दूसरी लहर हमारे सामने आई, तब यह वायरस एक भयानक रूप ले लिया था। अस्पतालों में बेडों एवं ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तब इस दुखद घड़ी में यह वैक्सीन ही लोगों के लिए एक चमत्कार साबित हो रही थी। जब स्थिति हाथ से निकलने लगी तो भारत सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर आयोजित टीकाकरण अभियान के निरंतर प्रयास के कारण भारत की स्थिति को नियंत्रित किया गया। यह सरकार की नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमें कोविड का टीका लगाने का मौका मिलता है तो हमें यह जरूर लगवाना चाहिए। यह टीका बिल्कुल निःशुल्क एवं सुरक्षित है। हाँ, यह टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द एवं एलर्जी जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन यह सामान्य है और यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है वे टीका जरूर लगवाएं। कोरोना से न घबराएं, मास्क जरूर लगवाएं, टीका जरूर लगवाएं, खुद बचें और दूसरों को बचाएं। अंत में मैं सारे डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वे इस कठिन घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं और कोविड मरीजों का सेवा कर रहे हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद लक्ष्मी, आपका प्रयास अत्यंत ही सराहनीय था। आप इसी तरह अपने उत्साह को बनाए रखें। अब मैं क्रमांक संख्या 24 आयुषी को उनके विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय निर्देशिका महोदय, माननीय सचिव महोदय, माननीय उप निर्देशिका महोदय, माननीय प्रधानाचार्य तथा उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सुप्रभात। मैं आयुषी सिंह सामने घाट ब्रांच से कक्षा 8A की छात्रा बोल रही हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भाषण देने वाली हूँ। उसे शुरू करने से पहले एक बार हम अपने कोरोना योद्धाओं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें शत नमन करते हुए मैं अपना भाषण शुरू करती हूँ। कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार टीकाकरण अभियान तेज करना चाहती है, जिसके लिए उत्पादन को बढ़ाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वह अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कम से कम 200 करोड़ वैक्सीन के डोज तैयार कर सके। इनमें से 2 वैक्सीन भारत में ही बनाई गई है। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम कोवैक्सीन। तीसरी वैक्सीन जिसे हाल में ही इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है वह रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन है, जिसे इन दोनों वैक्सीनों से कई ज्यादा प्रभावशाली भी बताया जा रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, जिसका लाइसेंस एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी के पास है। वहीं दूसरी तरफ कोवैक्सीन जिसे भारत के बायोटेक कंपनी ने बनाया है ICMR की मदद से। यह भारत का और विश्व का प्रथम वैश्विक टीकाकरण अभियान है। धन्यवाद। धन्यवाद आयुषी, आपके विचार हमें बहुत प्रभावित किया।
अब मैं क्रमांक संख्या 25 और आज की इस कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी अनन्या को आमंत्रित करती हूँ। माननीय निर्देशिका महोदया, माननीय सचिव महोदय, माननीय उप निर्देशक महोदय, माननीय प्रधानाचार्य एवं उपस्थित गणमान्य सदस्यों को मेरा सुप्रभात। मैं अनन्या सिंह, कक्षा 8 अ एवं शाखा सामने घाट की आज मैं भारत के टीकाकरण पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। टीकाकरण के अभियान देश में रोजाना टीके की औसतन 38 लाख खुराक दी जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस Yes, बेटा restart. बोलो. 1 minute है। I have to drink water. Yes, Ananya, are you there? Yes, sir. Can you start? Just a minute. Better make it faster. Should I start from starting? Please start. निर्देशिका महोदय, माननीय सचिव महोदय, माननीय उप निर्देशक महोदय, माननीय प्रधानाचार्य और उपस्थित गणमान्य सदस्यों को मेरा सुप्रभात। मैं अनन्या सिंह, कक्षा 8 अ एवं शाखा सामने घाट की छात्रा हूँ। आज मैं भारत के टीकाकरण पे बोलने जा रही हूँ। भारत दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। देश में रोजाना टीके की औसतन 38 लाख खुराक दी जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा विश्व वैश्वव्यापी महामारी से गुजर रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लेकर अपनी सरकार की इस कार्य में सहायता करें। भारतीय होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन से संपर्क में मदद करें, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपके कुछ साधारण सवालों का जवाब देने जा रही हूँ। पहला, भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन हमें कहाँ मिल सकती है? सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं से वैक्सीनेशन मुफ्त है, जिन्हें कोविड टीकाकरण केंद्र CVCS के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, भारत में कौन ले सकता है कोविड का टीका? भारत में कोविड का टीका 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए खुला है। तीसरा, क्या भारत में टीकाकरण मुफ्त है? दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्यों ने टीकाकरण मुफ्त कराने का निर्णय लिया है।
हम सबका यही है सपना, कोरोना से मुक्त हो देश अपना। जय हिंद, जय भारत, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद अनन्या, आपके विचारों ने हमें सोचने पर बाध्य कर दिया। आप सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त है। अब मैं शालू मैम से आग्रह करती हूँ कि वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद उपासना। आप सभी प्रतिभागियों ने जिस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त किया वह निश्चिततः लोगों को प्रेरित करेगा कि वह टीकाकरण अवश्य करवाएं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कथन आज के हमारे मुख्य अतिथि, सफल उद्यमी, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान गौरव यादव जी के लिए पूर्णतः सत्य है। श्रीमान गौरव यादव जी को विद्यालय शिक्षण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप के द्वारा लीडर ऑफ टुमारो श्रृंखला के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। विद्यालय शिक्षण के क्षेत्र में पर्यवेक्षण और विकासशीलता के उत्साह एवं जोश के द्वारा वे सभी विद्यार्थियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। श्रीमान गौरव यादव जी भारत के प्रथम नॉलेज नेटवर्क ऑफ स्कूल लीडर के निर्माण में भी शामिल हैं, जिसका शीर्षक है इंडियाज प्रिंसिपल नेटवर्क, जो संपूर्ण भारत के 6500 से ज्यादा विद्यालय को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। उनका एडटच स्टार्टअप को भारत के 300 स्टार्टअप के अंतर्गत श्रेष्ठ 20 में शामिल किया गया है। श्रीमान गौरव यादव जी को अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना अत्यंत अच्छा लगता है। उनको पुस्तकों को पढ़ने में अत्यंत रुचि है। वे अपना खाली समय में पढ़ने को में ही व्यतीत करते हैं। उन्हें आत्मकथा और जीवन चरित्र को पढ़ने में विशेष रुचि है। तो हम सभी श्रीमान गौरव यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं माननीय गौरव यादव जी से आग्रह करती हूं कि वे इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय जयदीप मधोक जी, पूनम मैम और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय व्यक्ति को मेरा अभिनंदन और इन सभी नन्हे बच्चों को तहे दिल से प्यार। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्रिंसिपल और आपका जो जितना टोटल स्टाफ है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप ऐसी सोच रखते हैं। मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि जो आप सोचते हैं वो आप अथा बनते हैं। और आज जब हमारा देश, इनफैक्ट पूरी दुनिया जब इस एक महामारी से जूझ रही है और स्पेशली हमारा देश जो इससे लड़ रहा है, और तो हमें ऐसे फोरम्स या ऐसे डिस्कशंस के और हमारे जो यंग ये बच्चे हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं और इनकी सोच, इनको मैं सबको सुन रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे प्रोग्राम और क्यों नहीं होते। आई एम श्योर होते होंगे, बट मैं स्पेशली पूरे स्टाफ को, पूरे मैनेजमेंट टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऐसी सोच रखी और इस इनिशिएटिव को अंजाम दिया। और जिस उत्सुकता से मैं देख रहा हूँ बच्चे इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया और इसको आप इतने अच्छे पैमाने पे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। मैंने मेघा को सुना, मैंने आयुष्मान को सुना और अंत में मैंने अनन्या को भी सुना, और मैं ये बता सकता हूं कि हर एक बच्चे
ने इतनी अच्छी बात रखी, और चाहे वो बात उन्होंने प्रिपेयर करके क्यों ना रखी हो, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को अपनी लाइफ में अपनाएंगे। और यही मेरे ख्याल से किसी भी ऐसी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि अगर इसमें से 10% बच्चा भी मोटिवेट या इंस्पायर हो जाता है तो वो एक्सरसाइज मेरे हिसाब से या प्रोग्राम मेरे हिसाब से पूर्णतः सक्सेसफुल माना जाता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इनके साथ में हूँ। मेरा कार्य ऐसा है कि मुझे बच्चों से मुलाकात या डिस्टिंग्विश एजुकेशनिस्ट से मुलाकात करने का मौका मिलता रहता है। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। बट मेरा अगर आप मन से पूछें मुझे सबसे अच्छा कब लगता है, जब मैं ऐसे यंग टैलेंटेड बच्चों के बीच में होता हूँ, क्योंकि मैं भी यंग फील करने लगता हूँ फिर उनके साथ होकर। तो मेरा यही मानना है कि सबसे पहले तो कौन जीतेगा या कौन सेकंड आएगा वो एक प्रोसेस है, वो चलता है। बट मेरे ख्याल से पहले तो बच्चों आप सभी सुनिए, आप सभी विनर्स हैं बिकॉज आप यहाँ हैं और आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। और स्पेशली अनन्या, देखिए वो बीच में थोड़ा सा पॉज करी, बट उसने अपनी कॉन्फिडेंस को वापस गेन किया। प्रिंसिपल सर ने उनको मोटिवेट किया, ना कि फौरन उनको डिस्करेज करके बोला कि भाई चलिए दूसरे व्यक्ति को लाइए, क्योंकि अन्यथा टाइम वेस्ट हो रहा था कहीं ना कहीं। बट देखिए कितना अच्छा लगा वो पूरा मौका, मैं देख रहा था उस चीज को, ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे हम इसको हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को। एंड माय हैट्स ऑफ टू स्पेशली द प्रिंसिपल पांडा जी के, उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से उसको हैंडल किया। ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, उसने उस बच्चे को समय दिया कि वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करे और वापस उसने इतना अच्छा बोला। यही लाइफ है बच्चों, कि अगर हम स्टम्बल भी करें, अगर हम गिरे भी नीचे, बट लाइफ का रूल ही ये है कि हम फिर ट्राई करें, उठें और आगे बढ़ें। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। मेरा तहे दिल से, जैसे मैंने आपसे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे मैं यहाँ पर 10 मिनट के लिए क्यों ना हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सभी के बीच में समक्ष होने में। और धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रण दिया और मैं आपके बीच में रहा। और जो भी जीते वगैरह बच्चे, मेरी बधाई है उनको। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई कंपटीशन है, मुझे मालूम नहीं इसका पूरा स्ट्रक्चर, पर रोशनी का जो मेरे को ब्रॉडली जो मालूम है कि एक डायलॉग था, एक डिस्कशन हो रहा है जहां सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। बट अगर ये कंपटीशन के तौर पे भी खेला जा रहा है तो जो भी पहले 3 बच्चे को आप पुरस्कृत करेंगे, उनकी तरफ से मैं भी आपको एक पुरस्कार की घोषणा पांडा जी जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनके माध्यम से कराऊंगा। और जब भी कभी मैं आपके बीच में होऊंगा, इसी प्रोग्राम को आप हर साल करिए प्लीज, और मेरी तरफ से इसको लेके काफी मैं इसको सपोर्ट करूंगा। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू फॉर पुटिंग दिस टुगेदर एंड ग्रेट शो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Gaurav sir. Thank you for your encouraging word. And you are one of the member of Sunbeam Academy family, because we are well associated with this family for last couple of years, and always you encourage us with your encouraging words. Thank you very much, and definitely we'll keep your expectations in your future. Thank you, sir. Over to you, Musi. धन्यवाद प्रधानाचार्य, धन्यवाद गौरव सर। आपके शब्दों ने हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है और हमें कभी भी हिम्मत न हारकर हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं माननीय उप निदेशक महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम को संबोधित करें। Hello, excuse me. Hello. Yes, sir. Oh, yes, I sir. think I was not audible. Okay, You're sorry. audible. Okay, thank you, Salu ma'am. Good afternoon and Jai Hind to one and all.
present in this virtual platform under the banner of Sunbeam Academy with the noble cause for creating awareness in the society and developing skills of the students together. Once again, on the behalf of Sunbeam Academy, I would like to welcome you all. I am very thankful to Mr. Gaurav for taking the time out of his busy schedule to attend this function as a chief guest. Sir, thank you once again for your variable guidance to all of us and your sentiments too. Really, it's a very wonderful day for all of us. I would like to congratulate to all the performers for their mind-blowing performance. I am sure that it is going to be very tough for all our judges to rank their performances. I don't know who is going to get the rank as per their effort and as per their expectation, but dear children, as Gaurav sir has also mentioned, that you all got success to achieve the goal for this program, Rosni, a ray of hope, that is creating awareness and motivating the peoples towards this world largest vaccination program against COVID-19 pandemic. Dear audience, I will not speak much on this issue because our children has spoke very effectively, but I would like to draw your attention towards the fact that why we are struggling longer to overcome this particular pandemic. This is nothing but the lack of awareness and the ignorance. We must say that it's a great initiative to create this environment, to motivate the peoples, to make the peoples aware, to make the peoples out from different kind of contradictions related to this program of government. Here, I would like to also draw the attention before I conclude my speech that dear parents and dear students, such programs are not only having a single objective. Yes, being an academician, or when the program is controlled, initiated, or run by the educationalists or the educational institutions, certainly they try to achieve the goals which is directly connected with the academic as well. So here, again and again, I also repeat this thing that dear students and parents and viewers as well, that we are in the 21st century, which is highly affected by the globalization, IT revolution and artificial intelligence, which is changing the work culture very quickly. Here, every children must having the skills like critical thinking, decision making, effective interpersonal skills, creative thinking, their problem solving skills, and effective communication skills, which is much more needed to being a good leader, or you can say the person who is having the great influence towards the society or the colleagues without having any post or a big title. Coping with the stresses, sensitivity and empathy, self-awareness and coping with emotions as well. Especially whenever we decide such kind of programs, especially this debate and speeches, we try to build up the confidence in our children. We try to remove their stage fears. We try to develop their listening, speaking and understanding skills, to develop the positive social skills and etiquettes. Yes, as Gaurav sir has mentioned also that not only we all are fortunate enough to be the part of such wonderful program
either as an organizer, either as an judges, teachers, participants, or their parents. Really, it went wonderful. But before I conclude, I would like to make an appeal from this forum to you all the viewers, either they are on the Teams or they are watching us on Facebook or YouTube through live program. Please and please, for the safety of your children, their education, for your family, for your relatives, for your neighborhoods, and for the humanity, be aware and create awareness, get vaccinated, and help others for the same. Thank you very much for listening me patiently. I am not going to be hurdled in between the performance and the judgment. Jai Hind, Jai Bharat, take care. धन्यवाद सर, आपके विचारों ने हमें जीवन के कर्तव्य पथ पर प्रेरित करने का अवसर दिया है। एक पंक्ति में अवश्य कहना चाहूंगी, घर पर ही रहना है हमको, भले ही मंजिल अभी दूर है, एक दिन में मिलती नहीं सफलता, पर एक दिन मिलती जरूर है। और आप सभी प्रतिभागियों के लिए ये एक सुविचार है जिसे आप अपने घर के बड़ों को अवश्य कहें। अब मैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि वे विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करें। Thank you, Salu ma'am. We are still waiting for, dear students, we are still waiting for the result to come. So that before you go for the result, a few things also I wanted to draw your kind attention. It's an announcement from our chief guest. So he has made the announcement of cash prize of rupees 2100 for the winner, and the second prize, that is of a cash prize of 1100 for the first runner-up, and the second runner-up will get a cash prize of 500 rupees. Thank you, Gaurav sir. Thank you for you always encourage us, either by your effort in a different way, either it is quizzing or organizing university fest or anything else. So thank you for your valuable time out of your busy schedule. I knew it very well that you are busy right from the morning till 12, and in the evening also you are having your own sessions. So you have given your valuable time, and thank you very much from my side and my family. Thank you, sir. So dear students, just please wait for a few minutes. We are going to declare the result. But as even Gaurav sir told, Deputy Director sir told, all of you are the winner. All the 25 participants today who are present virtually, all are the winner of this particular event. At the same time, we have received more than 100 participations. In the first round, we have received more than 100 participations, out of which we have shortlisted these 25 students. So all 100 participants are the winner. Because what I also do feel, participation is important. Because winning and losing is the part and parcel of your life. As repeatedly I use this particular terminology, you can say, Thomas Alva Edison, the one of the greatest scientists ever, he has started, you can say, for his research, and he failed 100 times to make bulb, right? And after that, once he has completed his task of the scientific research and invented bulb, then one of the journalists asked, "Sir, you failed 100 times, but ultimately you succeeded to achieve your success or in your scientific field." Do you know, dear students, what his answer? No, I've never failed. I learned 100 ways in which bulb cannot be made. That's what exactly you can say. That's why I do also feel that maybe failures, you may be termed as its failure, coined as its failure, but all the failures are the stepping stone for the success. And I can see the confidence, level of confidence among each and every child.
Even I can remember my school age. Even if sometimes even you nervous a little, भूल भी गए, फिर से second chance दिया गया, and you spoken well. That's what the spirit. Sorry. So now I'm having the final judgment. Manisha ma'am, I'm sending you. Yes. So just you take 2 minutes to complete this. So Manisha ma'am will take another 3-4 minutes, to complete the compilation of the result. So let me speak a few other things also. Gaurav sir, for your information, Rosni is a chapter of Sunbeam Academy, and in which you are trying to cover each and every core scholastics area of the students. Under these chapters, already we have done Mom and Me competition also. Today we are having speech competition for classes 6 to 8 and Indian Vaccination Campaign IVC. We are categorized into 4 categories. The first category, that is pre-nursery, nursery, LKG, UKG, and that is a slogan recitations. In a video form, they are supposed to recite a slogan, and those slogans are supposed to be sent to us, and all those participants will be awarded. There is no ranking of 1, 1st, 2nd, and 3rd. All the participants will be awarded for that. Then category number 2 we have taken, that is for classes 1 to 5. There they are supposed to write slogan with proper illustration. That's a slogan writing competition, and large many entries that we have received across all 4 branches, and we are still in the process of judgment, and we'll be judging the participants on the basis of their creativity. And on 6th of June, all those prize winners will be awarded. And the 3rd category, this is speech competitions for classes 6 to 8, and the language being taken as Hindi. Tomorrow we are going for classes 9 to 12. At the same time we'll start, and the preliminary round already being done, and more than 100 participations we have got across 2 branches, and all the selection process being done. And tomorrow at this particular time we'll be going for English speech competitions. So that the 2nd chapter of this particular Rosni will come to an end tomorrow. After that, we'll be going for the prize distribution ceremony on 6th of June. And in forthcoming week, we are having also the events line of like Yoga Day. We are having series of events for Yoga Days and Father's Day. My school do believe in the scholastic development and co-scholastic development of each and every child. We do believe that every child is unique. Their potential, their capacity, their skill in each and every respect are different. So we never compare any of the child in this particular respect. So we do believe in the holistic development of each and every child, which I do refer that Sarvangin Vikas. It's not necessary that a particular child only can excel in academic or scholastic activities. A child also having, in terms of their multiple intelligence, maybe that particular child is very active in terms of in other intelligence. So that we try to always make a balance between scholastics and co-scholastic development each and every child. So in this chapter, maybe the classes are not running physically, but at least we have tried to create a virtual platform in which at least the students, they can feel as if they are in the school and they are regularly coming to the school. So always I extend my thanks to my management to have trust on us and provided all sorts of platforms and equipments and each and everything so that we conduct such type of activities for the students and enriching them. Manisha ma'am, are you ready with the list? Yes, I think she is ready now. Yes, sir.
So, without taking much of your time, thank you, Gaurav sir, for your precious time to be given here, and all the best to all the participants. Absolutely, and I was, before I sign off, and I'm happy that you ran through the entire process, Pandaji. So my compliments, and honestly, if there are parents in the gathering and the students or their family members, this is what you truly call holistic development of a student in real sum in the 21st century. Because when we go out in the world, which is the real world after the 12th, trust me, academics will become a very, very small part of the entire deliberation. It's about what you are. How have you built yourself as an individual in the school? Your personality, your portfolio, your brand, that will really keep you in good stead. So मेरे ख्याल से मेरे फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव्स का एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन द स्कूल लाइफ ऑफ एवरी स्टूडेंट. और जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं, हेसिटेट कर रहे हैं, मान लीजिए, मैं उन सबको इनकरेज करूंगा कि जितना आप अपने आप को यहाँ पर अभी रेडी करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा. जितने बच्चों ने इस बार नहीं किया, प्लीज कोशिश करिएगा कि ऐसी प्रतियोगिता जब भी आपके स्कूल में हो रही है जरूर पार्टिसिपेट करें. पहले स्कूल में करें, फिर बाहर जाएं. ये आपका एक प्रोग्रेशन होना चाहिए. धन्यवाद पांडा जी. I couldn't say make a mention of Mr. Rohan Madhok as well, because he is also a very instrumental force. I have known him and I know his vision around building the Sunbeam Academy group. So my compliments to him as well. I couldn't make a mention of his work at the earlier half. My apologies for that. But I know the entire team of the Sunbeam Academy group family, very progressive management and very progressive administrative team, which makes for, I personally feel, a great institution. So all the very best, and I hope that you all continue to shine the way you are shining here today. Thank you. Thank you very much, sir. Over to Abu, sir. अब हम इस आभासी प्रतियोगिता रोशनी आशा की एक किरण के विजेताओं के नाम को उद्घोषित करते हैं, और इसे घोषित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है. सर्वप्रथम हम सराहनीय पुरस्कार प्रदान करते हैं आयुष्मान क्लास 7. इनके वक्तव्य के लिए सराहनीय पुरस्कार प्रदान किया गया है. इसके पश्चात आयुष कक्षा 8 की छात्रा इनके वक्तव्य के लिए इन्हें सराहनीय पुरस्कार प्रदान किया गया है. आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो. काव्या गुप्ता क्लास 7, इनके वक्तव्य के लिए इन्हें सराहनीय पुरस्कार प्रदान किया गया है. बहुत बहुत बधाई हो काव्या. अगले प्रतिभागी हैं आस्था क्लास 7. इनके प्रदर्शन के लिए इन्हें सराहनीय पुरस्कार प्रदान किया गया है. हमारे अगले प्रतिभागी हैं मेघा क्लास 7, और हमारे अगले प्रतिभागी हैं गरिमा क्लास 6. इन सभी प्रतिभागियों को सराहनीय प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है. आप सभी के विचारों के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं. अब हम सांत्वना पुरस्कार प्रदान करते हैं लक्ष्मी कक्षा 8 की प्रतिभागी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया. हमारी तृतीय विजेता है नंदिनी कक्षा 7. बहुत बहुत बधाई हो नंदिनी.
हमारी द्वितीय पुरस्कार की विजेता है आशुतोष, क्लास 7। और अब हम अपने प्रथम पुरस्कार विजेता को घोषित करते हैं। हमारा प्रथम पुरस्कार विजेता है सक्षम, क्लास 7। बहुत बहुत बधाई हो सक्षम, आपने अपनी उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। आप सभी प्रतिभागियों को उनके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। आप सभी प्रतिभागियों ने एक उत्कृष्ट माध्यम से यह जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमें टीकाकरण अवश्य लगवाना चाहिए। और जितने भी प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं उनके प्रयास के लिए। अब मैं अंततः धन्यवाद ज्ञापन के लिए धृति को आमंत्रित करती हूँ। Dhriti, are you there? Yes, Dhriti. Yes, Dhriti. Unmute yourself, beta. So already. Please, करिए। धन्यवाद मैम। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है, सूरज बनकर वही निकलता है। सनबीम एकेडमी के विद्यार्थियों द्वारा भारत के टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जो व्याख्या प्रस्तुत किए गए वह सभी सराहनीय हैं। सनबीम एकेडमी समाज और देश के हित के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। भारत के टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि हम टीकाकरण अवश्य करवाएं। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान गौरव यादव जी का कोटिशय धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया और साथ ही साथ न सिर्फ विद्यार्थियों को अपितु हम सभी को प्रेरणा प्रदान की। सनबीम एकेडमी के प्रबंधक तंत्र प्रधानाचार्य महोदय ने इस प्रकार टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जन जन को जागृत करने का प्रयास किया, उसके लिए उन सभी का हृदयागत आभार व्यक्त करती हूं। हम सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किया। आप सभी अभिभावकों का कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उन सभी का प्रयास सराहनीय है और उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अंततः मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, गुजर रहा है वतन हमारा आपात जैसे दौर से, छिपा हुआ है मुक्ति मंत्र समझना इसे गौर से। बस कुछ दिन का यह संघर्ष है, फिर तो जीवन सुरक्षित है, फिर तो जीवन सुरक्षित है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, everyone. Now all of you are requested to please leave the meeting. Thank you very much.